So I can see at least 10-15 people live now. So guys, welcome you all for this live session. In this live session, we're going to talk about the most important current affairs related to Indian economy, right? Myself, Jatin Verma. So guys, we'll be talking about जो भी from 1st January 2017 onwards, जितने भी current affairs रहे हैं important economy related, उनको एक sequential way में study करेंगे so that जो भी हमारे even if जून 2017 में prelims हो चुका था, but still जो भी important current affairs हैं जो कि dormant हैं, on which the questions have not been asked, on those topics also we will be having a look at these topics. सबसे पहले 2-3 announcements करना चाहूंगा. एक तो वीडियो अनअकैडमी पे एक अपलोड करूंगा मैं देर रात्रि आज later tonight, which will be on double taxation avoidance agreement, base erosion and profit sharing. ये जो economy related terms हैं which which are beyond our pale in the normal course of reading the newspaper, right? तो ये चीज है इकोनॉमी का. और उसके बाद में जो इंडियन इकोनॉमी का जो कोर्स है उसका सुबह कुछ सीट्स का इशू हो गया था बिकॉज सीट्स 200 सीट्स ऑलरेडी गोट फिल्ड अप, तो उसे इंक्रीज किया गया था 200 से 300. टोटल अभी 50 सीट्स और लॉन्च कर दी गई हैं. तो जो लोग दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दी डे टाइम they can apply now I can see at least 200 people, 178 people live. So guys, the point is, एक तो indexation DNA का जितने भी economy related जिनको भी problem है, I can understand कि economy में fundamental clarity, fundamental topics की clarity नहीं रहती. So those of you who have some problem or the other in these economy related topics, they can at least watch the last part of the DNA. अगर 3 parts हैं तो थर्ड पार्ट आप इसका डीएनए का देख सकते हो. और इंडेक्स जो है डीएनए का कौन से डे पे कौन कौन सी चीज डिस्कस करी गई थी, वो सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस डीएनए में हमने शेयर कर दी है आपसे. तो you can take the benefit for that also, right? Out of that also Indian economy related. Sorry, half the concentration is in reading the comments, so that is why some kind of thing is occurring. Now यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जनवरी में कुछ टॉपिक्स थे. हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जून ऑनवर्ड्स हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि जून ऑनवर्ड्स इकोनॉमी हमने कवर कर ली और एक ही पॉपुलर मैगजीन हम लोग सब कवर करते हैं. अगर उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते जो कि प्रीलिम्स में नहीं आते, बिकॉज prelims UPSC expects you to be thorough with the basic fundamentals of economy. जैसे what if the fiscal deficit is increasing, what effect is it going to have on your the inflation thing in the economy? If fiscal deficit is increasing, what would be the effect of that increase in fiscal deficit on the inflation in Indian economy? Is it going to increase or is it going to reduce, right? These kind of things are asked by the UPSC in that thing. Other thing is, अगर foreign direct investment if it is coming in more quantity into Indian economy, if it more and more of dollars are coming into Indian economy, what would be its impact on inflation in the economy, right? तो ये जो चीजें हैं डेफिनेटली उसका एक छोटा सा एक इसका पॉइंट बताता हूँ कि अगर FDI ज्यादा आ रही है तो FDI डॉलर्स तो इन्वेस्ट होंगे नहीं इंडियन इकोनॉमी में. FDI डॉलर्स आर कन्वर्टेड बाय RBI. अगर अमेजन ज्यादा डॉलर लेके आ रहा है तो अमेजन को उसको रुपी में कन्वर्ट कराना होगा RBI से. तब अमेजन अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा या जो भी डिलीवरी बॉयज हैं उनको सैलरीज पे करेगा अमेजन, तो रुपी टर्म्स में पे करेगा. अब जो डिलीवरी बॉय हु वाज प्रीवियसली अनएम्प्लॉयड, ओके, now that delivery boy is getting a salary of 10,000 rupees or 15,000 rupees, so he will naturally be spending more in Diwali or on Diwali for his family or for his children, for school payment payment of school fee. So likewise the supply of money in the economy will increase. Okay, so naturally FDI is leading to increase in the supply of money, and when money is increasing in economy, naturally the supply of goods is not going to increase concomitantly. एकदम से गुड्स की सप्लाई, एकदम से खेती की फसल ज्यादा थोड़ी ना होने लग जाएगी. फूड ड्रिंक्स तो उतने ही रहेंगे, एडिबल ऑयल भी उतना ही रहेगा, पार्ले जी बिस्किट भी उतना ही रहेगा. उस केस में क्या होगा, फिर महंगाई बढ़ने लग जाएगी, तो सब्जी वाले के भाव बढ़ जाएंगे. तो FDI लीड्स टू इंक्रीज इन दी इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, राइट? सिमिलरली अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स. अगर आपके पास में 10,000 रुपए है, आप 25,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहे हो, आप मनी सप्लाई तो मार्केट में इंक्रीज कर रहे हो. दैट इज वाई सिमिलरली इफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स, स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स, दैट लीड्स टू increase in the supply in economy. अगर supply of money in the economy बढ़ेगा, short run में it leads to inflation. That is why RBI और फिर वो monetary policy committee and other things, right? तो ये चीज है. अब स्टार्ट करते हैं जनवरी 2017 से जो भी करंट अफेयर्स आपके इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला आता है ग्रीन बॉन्ड्स. तो ग्रीन बॉन्ड्स
ये आपको पढ़ने हैं, मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज फिर 1 घंटे का लेक्चर हो जाता है, आधे तो सो ही जाओगे उसमें। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, तो इसमें क्या था कि सर्वोदय और उत्कर्ष नाम से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं, ठीक है, ये बेसिकली 2014 का टॉपिक है आपका नचिकेत मोर कमेटी रिकमेंडेशंस। ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये सब चीजें हैं, इवन दो इंडियन इकोनॉमी का जो पेड कोर्स है उसमें हम स्टडी करेंगे। हैविंग सेड दैट, नचिकेत मोर कमेटी का टेलीग्राम चैनल पे जतिन स्पेस वर्मा 05 पे जो लोग नहीं है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आई विल बी शेयरिंग द लिंक फॉर दैट टेलीग्राम चैनल राइट आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो, ओके, इमीडिएटली आफ्टर वी क्लोज दिस सेशन, राइट। तो एक तो नचिकेत मोर कमेटी और आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक ये पढ़ने हैं। नेशनल हाउसिंग स्कीम फॉर पुअर, अगर आप ये देखोगे काफी सारी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं, सारा कुछ उसमें याद रखना मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल काफी ज्यादा हमारी प्रोमिनेंस में रही पिछला पूरा साल, जहां तक कि मैं डीएनए कर रहा था, ये सब चीजों के बेसिस पे ये लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी है। तो ये टॉपिक्स पे आप स्पेशल एम्फेसिस दे सकते हो, ऑल रिस्क माइंड, राइट। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंक्रीज इन हाउसेज फॉर अर्बन पुअर बाय 33%। अब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है कि आधा खर्चा जो है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सरकार इसमें लोन देगी, बाकी का 4% विल बी borne by the house जो बेनिफिशियरी है इसमें, राइट। तो ये चीज है। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं कौन कौन सी? ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, ये सब। अब इंश्योरेंस कौन सा जनरल इंश्योरेंस होता है? जो मारुति कार पे या फिर आपकी होंडा सिटी पे या फिर फेरारी पे, ये सब पे जो इंश्योरेंस कराया जाता है उसे जनरल इंश्योरेंस कहा जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये सब चीजें हमने उसमें स्टडी बेसिकली डीएनए में हमने कर रखी है थोड़ी बहुत। और एक और चीज बताना चाहूंगा, जो अप्रैल और मई के डीएनए का जो भी आपके जो भी करंट अफेयर्स हमने प्रिपेयर करे थे, डीएनए आई वाज डूइंग एल्सवेयर, वो डीएनए की पीपीटीज, सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, पीपीटीज मैं आपके साथ में पूरा का पूरा टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव के थ्रू, राइट। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर फॉलो कर लेना, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, टेलीग्राम फ्री था पिछले जमाने में भी, इस जमाने में भी फ्री है, राइट। तो ये चीज है, वो अप्रैल और मई के जो भी डीएनए जिनको जो बैकलॉग स्टडी करना हो वो लोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने जून ऑनवर्ड्स डीएनए स्टडी कर रखा है। नाउ नेशनल स्टील पॉलिसी। अब गाइस ये जितनी भी पॉलिसीज हैं, आप लोग क्या करते हो, इंडिया ईयर बुक खरीदते हो, उसमें पढ़ने बैठ जाते हो, 2-4 पेज पढ़ते हो, फिर निन्नी आ जाती है। ऐसे केस में उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इंडिया ईयर बुक को, जो लोग डीएनए फॉलो कर रहे थे। बार बार कह रहा हूं कि डीएनए नहीं फॉलो किया है, अभी भी इंडेक्स फेसबुक प्रोफाइल पे दे रखा है मेरी, इंडेक्स टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, तो वो फॉलो करके आप इंडेक्स से जो अगर डेली न्यूज एनालिसिस आप रेगुलरली फॉलो कर रहे थे, तो इंडिया ईयर बुक क्या है, वो सबमिशन है, सारे के सारे जो भी पिछले साल में हुए हैं करंट अफेयर्स, उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। तो इंडिया ईयर बुक की कोई खास नीड नहीं है अगर आप डीएनए फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हमने बैकग्राउंड ऑफ मिनिस्ट्रीज वगैरह भी साथ में फॉलो किया है, राइट। बैकग्राउंड जो भी मिनिस्ट्रीज वगैरह का था, तो उस केस में आपको डीएनए की जरूरत नहीं है, सॉरी इंडिया ईयर बुक की जरूरत नहीं है। नाउ नेशनल स्टील पॉलिसी, और एक दूसरा टॉपिक, नेशनल स्टील पॉलिसी जनवरी 2017 में था, ठीक है। उसके बाद आपका डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन पॉलिसी मई 2017 में आया। तो द पॉइंट इज, दोनों को आपको इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करना होगा, क्योंकि नेशनल स्टील पॉलिसी समवेयर इज फीडिंग इनटू द डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन पॉलिसी, राइट। मेक इन इंडिया के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। देन ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, काफी ज्यादा प्रोमिनेंस में रहा। हमने देखा कि ईपीएफओ के पिछले कुछ सालों में, एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, सिर्फ इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज और डिक्रीज होता था तभी ईपीएफओ प्रोमिनेंस में आता था। लेकिन इस बार बिकॉज ऑफ द रीजन दैट नेशनल आपके जो लेबर सेक्टर लॉज हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते लेबर सेक्टर लॉज को रिफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। कॉन्सेंसस बेस्ड अप्रोच, एक आम सहमति बनाते हुए अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फॉलो कर रही है, तो उस केस में जो ये अप्रोच फॉलो करते हुए ये किया जा रहा है, उस केस में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट पहले ईपीएफओ के जरिए ज्यादा से ज्यादा नेट को एक्सपैंड कर रही है कि जो गरीब लोग हैं, वो ऑलरेडी जो इन अनसिक्योर्ड वर्कर्स हैं, वो इस नेट में आ जाएं, सोशल सिक्योरिटी नेट में। इसीलिए ईपीएफओ किसके अंडर आता है, ईपीएफओ डिसीजन कैसे लेता है, ठीक है। सारी चीजें जो पास्ट 1 ईयर में करी हैं, उसे एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ लेना, जो कि डीएनए के नोट्स हैं। अब आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे उन्हें कंपाइल करना, कोलेट करना, इस वे में स्टार्ट कर दो कि आपको ये हेल्प करें, राइट। तो ये पांडे जी, अब आई कैन सी यू, मतलब आप समझ गए मैं किसके लिए कह रहा हूँ ये। देन दिस थिंग, FIPB to be abolished, February 2017 onwards काफी ज्यादा इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक्स आए आपके। तो इसमें क्या था कि
FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड पहले यूज किया जाता था। जो भी FDI रिलेटेड प्रपोजल्स आती थी, FIPB, अगर कोई सिक्योरिटी एंगल होता था जहां पे ऑटोमेटिक रूट में FIPB FDI अलाउड नहीं है, FIPB 2-3-6 महीने लेता था अप्रूवल देने में। FIPB को अबॉलिश कर दिया गया। अब क्या है, इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी, यानी कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ योर कॉमर्स, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंटर मिनिस्टीरियल पैनल में बैठेंगे। एक वजह से इंटर हाई कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, विच विल डिसाइड ऑन द फाइल ऑफ FDI। यानी कि अगर फ्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रही है तो उस केस में क्या उसे अलाउ करना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में, क्या उसे किसी सेंसिटिव एरिया में अलाउ करना चाहिए या नहीं। ये सब चीजें जो है आपकी ये इंटर मिनिस्टीरियल पैनल डिसाइड करेगा। पहले ये FIPB डिसाइड करता था, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते इसे अब जो है FIPB को स्क्रैप कर दिया गया है। किस अकॉर्डिंग? बजट 2017 अकॉर्डिंग। तो एज आई सेड, ये चीजों को हम इकोनॉमी के इंडियन इकोनॉमी के जो आपका बेसिक कम करंट अफेयर्स कम बजट कम इकोनॉमिक सर्वे कोर्स है उसमें स्टडी करेंगे। तो जो लोग बेसिकली इकोनॉमिक्स में थोड़ा लैकिंग है, आप लोगों से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अदरवाइज ये लिस्ट है। अब फेब के इश्यूज से पहले रेलवेज का जो बजट है, फेब में इसे मर्ज किया गया था, राइट, रेलवेज बजट को। तो रेलवे बजट 1921 में एक्वर्थ कमेटी होती थी प्री इंडिपेंडेंस एरा में। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। एक्वर्थ कमेटी थोड़ा याद कर लेना, ACWORTH सिंपल से इसके स्पेलिंग है। एक्वर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया था सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम दी जनरल बजट, लेकिन अब उसे मर्ज कर दिया गया है February 2017 से, राइट। Yes, Fatima Sheikh, your question is it applicable? It is applicable for 2019 aspirants also, because if you see the nature of the questions that UPSC is asking, 2017 में जो GS Mains Paper 3 के questions हैं, some of those questions are from 2016 Budget and Economic Survey. To give you an example, if you are having Wizard का current affairs का Wizard का जो 10 year है, previous year question bank है, Wizard का या कोई और जो भी है आपके पास में, उसमें 2011 में एक क्वेश्चन देखोगे, बायो एस्फॉल्ट, BIOASPHALT, ये बजट का टॉपिक था, लेकिन यूपीएससी ने पूछा है कि बायो एस्फॉल्ट है क्या। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। और ये बजट का जो बजट में उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मिस्टर प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी बने। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अपनी बजट स्पीच में ये वर्ड यूज किया था, बायो एस्फॉल्ट पे 5% जो है ड्यूटी वो कम करी गई थी। लेकिन उसका यूपीएससी ने इकोनॉमी एंगल नहीं पूछा, बायो एस्फॉल्ट पे कितने % ड्यूटी कम करी गई है या नहीं। यूपीएससी ने ये पूछा कि बायो एस्फॉल्ट है क्या। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, 2011 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, राइट। तो ये जो क्वेश्चन था ये 2009 या 10 की बजट स्पीच में था। तो दिस इज हाउ द यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस। माय जॉब, सिंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, so my job in the Indian economy course would be to take along the topics from 2016-15 जो भी, जैसे कि नचिकेत मोर कमेटी है 2014। अब नचिकेत मोर कमेटी क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं they were into prominence, इसीलिए ये आपका जो है इस दोबारा से नचिकेत मोर कमेटी पेमेंट्स बैंक्स और ये सब के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएगी, राइट। तो 2014 की इस कमेटी की रिकमेंडेशंस आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये चीजों को आपके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं रहेगा, इतने सारे 2014-15 के जो 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते जरूर है 4-5 क्वेश्चंस। ये सब चीजों को आपको साथ साथ लेके चलना होगा, राइट। कमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ये फिर क्लास जो है डिक्टेटोरियल हो जाएगी, डेमोक्रेटिक नहीं होगी। कौस्तव सिंह, इट इज फॉर यू। नाउ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स होते क्या हैं? इसके लिए अनअकैडमी पे और मेरे IAS तैयारी विद जतिन वर्मा करके जो यूट्यूब चैनल है, दोनों पे ये वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। जो आपका है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ये होता क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, व्हाट आर दीज? ठीक है, ये सब चीजें। और FDI नॉर्म्स जो लेटेस्ट हैं, ये एक अभी वीडियो एक तो हम उसमें पॉलिटी के कोर्स में हम देखेंगे, प्लस दूसरे हम इसे देखेंगे जो आपका जो करंट अफेयर्स के वे से इसे देखेंगे DNA कोर्स में। फिर लास्ट में हम मार्च-अप्रैल में जब भी अगर टाइम परमिट्स, इफ आई एम अलोंग विद यू गाइस, तो डेफिनेटली इसे दोबारा से स्टडी किया जाएगा, राइट। देन आपका आता है रतन वटल कमेटी, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की बात करी थी रतन वटल कमेटी। इसकी रिकमेंडेशंस थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेना। इसका जो बैकग्राउंड है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड क्यों बनाया जा रहा है, इसकी एसेंस क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मेंस के लिए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की एसेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन क्रेडिट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड,
ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है IIFCL, ये इस फंड को मैनेज करेगा। क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कब हुई थी, और साथ ही साथ IIFCL इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कब हुई थी, ये कब स्थापना करी गई थी इसकी। दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2018। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी, आपने देखा होगा कि दिसंबर में हमने कुछ जनवरी में भी कुछ मोनोरेल और ये सब डिस्कस किया था। तो ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी का ये पार्ट बन जाएगा बेसिकली, राइट। इसमें पेडेस्ट्रियंस को कितनी स्पेस देनी चाहिए, ये सब अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं। और एम्बुलेंस के लिए स्पेशल वे होना चाहिए, राइट ऑफ वे, जो एम्बुलेंस हुटिंग पीछे से हुटर बजता रहता है, हम लोग साइड नहीं देते हैं, उस सब चीजों के बारे में। देन टामरा, ट्रांसपेरेंसी, ऑक्शन, मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की ये पॉलिसी है, टामरा जो ये क्रिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कोल ब्लॉक एलोकेशंस में, ये सब जो हमने देखा कि कोलगेट और ये स्कैम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में जितने भी कोल आवंटन किया गया उसे खत्म कर दिया गया। तो ये चीज है। इसके बाद में आपका आता है व्हाइट लेबल एटीएम्स। व्हाइट लेबल एटीएम्स क्यों बनाए गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन से इनका क्या लेना देना है, व्हाइट लेबल एटीएम्स में कितने परसेंट एफडीआई है, अभी के लिए बता दे रहा हूँ 100% एफडीआई व्हाइट लेबल एटीएम्स में परमिट करी गई है। व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या है, कोई भी कार्ड आप यूज करोगे उसमें व्हाइट लेबल एटीएम में, और वही जो नॉर्मल चार्जेस लगते हैं, रादर देन बैंक्स स्प्रेडिंग देयर ओन एटीएम नेटवर्क, उनके लिए ये बेसिकली महंगा सौदा हो जाएगा। इसलिए जो रूरल एरियाज में जो एटीएम सेटअप करने का जो टारगेट जो बैंक नहीं फुलफिल कर पाते, वो व्हाइट लेबल एटीएम्स की सर्विसेज को अवेल करते हैं, राइट। तो ये चीज है। देन जनवरी फरवरी के आपके करंट अफेयर्स ये थे। अगर हम मार्च के करंट अफेयर्स देखें, ई वॉलेट फर्म्स, जैसे कि पेटीएम की हमने बात करी, मैंने फेसबुक पे ही 1-2 दिन पहले ये वीडियो शेयर करा था, पेमेंट वॉलेट्स क्या, ई वॉलेट्स क्या हैं, और पेटीएम पहले एक ई वॉलेट था, अब ये पेमेंट बैंक बन गया है। तो डिफरेंस बिटवीन पेमेंट बैंक एंड ई वॉलेट्स, ठीक है, तो ये चीज है। देन इकोनॉमी कम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हमने शायद दिसंबर के लास्ट वीक में मैंने ये वीडियो शेयर करा था कि फाइनेंस मैटर्स जो हैं आपके जो भी जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स का इशू है, ट्रिब्यूनल्स के इशू को हम एक वे से मनी बिल में घुसा दे रहे हैं, सरकार ऐसा कर रही है। और आर्टिकल 110 ये कहता है, आर्टिकल 110 की परिभाषा क्या कहती है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल क्या है उसमें, आर्टिकल 117 क्या कहता है। तो टेकिंग अलोंग इकोनॉमी एंड पॉलिटी टुगेदर, जिन लोगों को बजट वगैरह नहीं समझ में आता कि बजट है क्या, बजट पास कैसे होता है, बार बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन तक कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट कैसे पास, क्योंकि जब इंटरव्यू के दिन आते हैं पास में, तो उसमें क्या होता है कि मतलब बजट आपको, बजट यू हैव टू बी थॉरो विद बजट पैसेज प्रोसेस, क्योंकि उस टाइम पे बजट पास हुआ होता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, डिस्कशन चल रही होती है। तो नॉर्मली ये लोग प्रीलिम्स के, क्योंकि उसके बाद में फिर प्रीलिम्स आ जाता है जून में, तो प्रीलिम्स में भी बजट ओरिएंटेड हर साल 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, और साथ साथ आपके ये भी क्वेश्चन रहते हैं जो इंटरव्यू वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीजें जो है, आपको बजट कैसे पास होता है, इन सब से अगर जानकारी नहीं है तो आप इकोनॉमी का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज डीएनए के थ्रू ये जो भी एक वे में फ्रेगमेंटेड वे में जितना भी आपको मतलब बनता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वहां से। देन कमिंग टू इसमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अब गाइज मैंने एक क्वेश्चन डीएनए में शेयर किया था, आप सभी लोग आई होप की डीएनए डेली, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग देखते हो डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस ऑन एकेडमी पे, जिनको नहीं पता तो उसमें हमने ये एक डाउरी वाला क्वेश्चन स्टडी किया था कि क्या रीजन है कि प्रॉस्पेरस रीजन्स जो इंडिया के हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं, उसमें भी फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है। वो था जीएस मेंस पेपर 1 के लिए, सोशियोलॉजी और सोशल इश्यूज के लिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है रीजंस क्या है अर्बन और रूरल डिवाइड के। मेंस ओरिएंटेड एनालिसिस थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहूंगा। इसमें रीजंस क्या है, अगर आपसे कोई रीजंस पूछे, हाई रूरल एरियाज में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि कितनी महिलाएं आउट ऑफ एवरी 100 सेट ऑफ वुमेन, कितने लोग हैं जो इसको बेसिकली इसे जो रूरल एरियाज में कितनी वुमेन है जो पार्टिसिपेट करती हैं लेबर सेक्टर में, ठीक है। तो क्या है बेसिकली अर्बन रूरल डिवाइड, एग्रीकल्चरल लेबर, क्योंकि मेन जो है इन दी सर्च ऑफ वर्क दे बेसिकली माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, ठीक है। अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने के चलते पूरा का पूरा बर्डन जो है खेती बाड़ी महकमे का वो वुमेन पे आ जाता है। जो पंजाब से सुन रहे होंगे समझ सकते हो बात मेरी, तो जो और भी स्टेट से सुन रहे हैं वो भी समझ सकते हैं इसमें।
तो इसमें क्या है कि मनरेगा केसेस में अगर जो मेल लेबर मनरेगा के आने के बाद फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज ये बढ़ा है। इसे फिनोमिनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों बढ़ा है? क्योंकि मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जो हस्बैंड है फैमिली में, ही गोज आउट इन सर्च ऑफ वर्क इन मनरेगा और इन अर्बन एरियाज। और दूसरी चीज क्या है, पॉइंट नंबर 2 नोट कर सकते हो इसे, अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में जो गैप था, पहले 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था एक गांव से दूसरे गांव के लिए, फिर 10 किलोमीटर हो गया। अब क्या है, क्योंकि रूरल लैंड जो है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है श्रिंक होती जा रही है, इसी के चलते जो हस्बैंड है, जो मेल मेंबर ऑफ द रूरल फैमिली है, वो दे स्टार्ट वर्किंग एज गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड इन मॉल्स, या फिर आपके कोई ना कोई और रोजगार में वो अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर में वो बढ़ते जा रहा है, राइट। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है, ओवरऑल भी एक वे से प्रोग्रेसिवनेस इसमें देखने को मिल रही है कि यस, सरकार ने जो भी एफर्ट्स लिए किए पिछले सालों, उसके चलते जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है रूरल एरियाज में विमेन का बढ़ते जा रहा है, लेकिन अर्बन एरियाज में वो नहीं बढ़ रहा है कंकॉमिटेंटली। जैसे सरकार ने एक पॉलिसी सरकार लेके आई, उसमें था कि जो आपके कॉल सेंटर्स हैं इन रूरल एरियाज, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, उनको बाहर लेके, मतलब उन्हें रूरल एरियाज में सेटअप करा जाए। उसके चलते भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरियाज बढ़ रहा है, राइट। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट एंडेवर्स, देन जो मनरेगा का एक रीजन है, मनरेगा का फॉल आउट है, और बाकी सब चीजें। लेकिन अर्बन एरियाज में ये कम है। अर्बन एरियाज में आप देखो 26 से 27% जो है महिलाएं काम के लिए निकलती हैं, लेकिन रूरल एरियाज में 45%, ठीक है। रूरल एरियाज में कम आ रहा है, रूरल एरियाज में पहले 55% था, लेकिन अभी भी हाई है। तो क्या अगर इसमें एक और एंगल हम लेके आए, क्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं हुआ रूरल एरियाज में? अगर मेल और फीमेल मेंबर दोनों एग्रीकल्चर में ऑक्यूपाइड है, तो कहीं ना कहीं फीमेल तो कुछ काम कर ही नहीं रही। अगर हम देखें, काम तो, इनकम तो वो मेल मेंबर की काउंट हो रही है, राइट। तो ये चीजें हैं इसमें, ये आपको एक वैसे फिनोमिना के वे में इसे स्टडी करना होगा इन सब चीजों को। ये GS 1 के लिए भी रेलिवेंट हो जाएगा और GS मेंस पेपर 3 के लिए भी। और हमने बेल कर्व स्टडी करा था। ये सब चीजें जो हैं बेसिकली आप एक थीमेटिक वे में आप इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कोर्स में पाओगे। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन कई बार कम होती है, हम सोचते हैं कि वही सब ज्ञान होगा, लेकिन वही सब ज्ञान नहीं होगा। दैट इज गोइंग टू बी अ प्रीमियम कोर्स, ओके। सो आई कैन सी इकोनॉमी कोर्स का स्केड्यूल 2 से 3 कर सकते हो, क्योंकि यू आर अ 24/7 यूपीएससी एस्पायरेंट एज फार एज आई नो यू, राइट। तो ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन और इंडिया की पोजीशन क्या है इनमें, ये सब चीजें 2014 ऑनवर्ड्स चर्चा में चल रही हैं, जब से नई सरकार आई है। पिंक रेवोल्यूशन, स्पेशली पिंक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाइट रेवोल्यूशन का इंडिया का उसमें शेयर क्या है वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन में, ये सब चीजें, राइट। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, फिशरीज, और फिशरीज WTO से कैसे असर पड़ता है इसका। दूसरी चीज, अप्रैल की अगर हम आए, अप्रैल में वेयर हाउस रिसीट्स क्या है। वेयर हाउस रिसीट्स क्या होती है, जैसे आपने अपना आलू, अगर आप एक पोटैटो फार्मर हो, आपने अपना आलू वहां पे रखा किसी कोल्ड स्टोर में, या आपने अपना अनाज रखा, वो अनाज आपने रख दिया, आपके पास में पैसे नहीं बचेंगे। जब तक आपके पास में पैसे नहीं आएंगे, तब तक एज अ फार्मर आप नई फसल नहीं बो पाओगे, तो आप नई कल्टीवेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे, सोइंग सीजन आपका निकल जाएगा। इसीलिए वेयर हाउस रिसीट्स का फिनोमिना को नाबार्ड और जो रूरल बैंक्स हैं वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं अप्रैल पे। अप्रैल 2007 में सागरमाला प्रोजेक्ट, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, नेशनल वाटरवे 1 क्या है, सिर्फ नेशनल वाटरवे 1 तक नहीं सीमित रहना है, हमें अर्जुन नहीं बनना है, आपको साथ साथ ये भी स्टडी करना होगा। नेशनल वाटरवे 2, 3 कौन कौन सी सिटी से जाता है, ठीक है। लेफ्ट वन की सिटी से नहीं भी जाता है तो भी इसे याद कर लेना, मैप वैप थोड़ा गूगल आउट करके। बाकी के मैप मैंने 1-2 शेयर करे थे नेशनल वाटरवे 1 से लेके टेलीग्राम चैनल पे, वो भी दोबारा से भी शेयर कर दिया जाएगा। जस्ट रिमाइंड मी, कोई भी जो थोड़ा सा मतलब एक बार रिमाइंड करा दोगे तो अच्छा रहेगा। और ये सारे नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4 ये आपको याद रखने हैं। नेशनल वाटरवे 1 जो है, फॉर एग्जाम्पल वाराणसी से हल्दिया तक है, राइट, हल्दिया पोर्ट तक। देन फार्म लोन वेवर्स, ये एक एनालिटिकल टॉपिक बनता है कि फार्म लोन वेवर से बेटर ये नहीं है कि हम हर साल अपनी GDP का 4%, 5% जो है एग्रीकल्चर पे स्पेंड करें, राइट। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, कृषि सिंचाई योजना, इरिगेशन जो भी है। और उसके बाद में रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस बार सेटअप करी गई, ठीक है। रेल टैरिफ अथॉरिटी जब 2014 में सेटअप करी गई थी, ध्यान से सुनना, रेल टैरिफ अथॉरिटी पे क्वेश्चन आया था। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये सब आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा इसका। देन FRBM एक्ट, NK सिंह पैनल रिपोर्ट, यानी कि FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी, ये क्या है, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसका वीडियो मैंने अनअकैडमी पे बनाया था,
बाकी की जो नॉलेज है इकोनॉमिक सर्वे 2017 यानी कि जो प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे है, तो ये बेसिकली जो है मतलब इकोनॉमिक सर्वे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया था, उस पर कोई क्वेश्चन खास आया नहीं है, तो वो क्वेश्चन भी डोमेंट है, वो टॉपिक आ सकता है 2018 में, उसे भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देन गार रूल्स पे भी जो आज मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगा उससे कि व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द इंडियन इकोनॉमी कोर्स, राइट। गार रूल्स वाला वीडियो आप अनअकैडमी पे जरूर ये देख लेना। इसमें 2-3 चीजें आई वुड ट्राई टू क्लियर। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है ये होता क्या है, पार्थ सारथी शोम पैनल ने क्या कहा था, ये सब चीजें आज रात अनअकैडमी के वीडियो में, राइट। आज का डीएनए नहीं आया तो इसलिए हम ये स्पेशल वीडियो करेंगे, और शायद कह रहा हूँ संडे का डीएनए यानी कल का डीएनए भी आई विल ट्राई टू एनालाइज। Then this thing, the Hindu I'm talking about. Then startups, intellectual property protection scheme, SIP जिसका नाम है, startups पे काफी ज्यादा emphasis दिया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो FRDI भी बताऊंगा, मधु सिंह आपका जो क्वेश्चन है FRDI पे भी आएंगे अभी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्टार्टअप्स पे आपको थोड़ा सा स्पेशल एम्फेसिस देना होगा, क्योंकि 2017 प्रीलिम्स देखो उसमें काफी सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर भी इतना सारा एक्टिविटी हुई है स्टार्टअप्स में कि एक क्वेश्चन मतलब दोबारा से ये टॉपिक इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। देन कमिंग टू योर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एम्फेसिस एडेड, एक्स्ट्रा एम्फेसिस एडेड। देन ये कौन कौन लेके आया बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान? DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और वर्ल्ड बैंक ने, तीनों ने मिलकर इसे रिलीज किया, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017। अब शेल फर्म्स के चलते आप लोग जो अगस्त सितंबर, आई कैन सी मेनी पीपल अगस्त सितंबर अक्टूबर से जो लोग डीएनए सुनते आ रहे हैं, शेल कंपनीज के चलते प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आपको बताना है। सोर्सेज ऑफ पावर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, राइट। तो ये से एक गाइस यहाँ पे ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम आप लोग भी, क्योंकि 21st सेंचुरी है तो थोड़ा पेशेंस कम रहता है, ये सब चीजें मैं एनालिटिकल वे में वहीं पे ही डील करूंगा। और एक नया फीचर YouTube पे मेरे YouTube चैनल पे आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट टिल द टाइम आई एम अलोंग विद यू गाइस, तो 5 to 7 मिनट्स का डेली एक डिस्कशन लाइव इसी तरह का रहेगा, यूजिंग व्हाइट बोर्ड एंड अ मार्कर, उसे हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। कोई भी एक टॉपिक 5 मिनट्स का एक फिक्स टाइम पे, जिससे कि हम जो भी निटिग्रिटी जो डीएनए के थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से मिस हो जाती है, उसे हम वहां पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा मेरी तरफ से। एंड देन ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में इंडिया का 8th रैंक है। ये आपको एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये नया है, क्योंकि बाकी सारे जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा दिए जाते हैं, इसलिए यूपीएससी नोज की आपको वो तोते की तरह रटे होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये सब, इसीलिए उन पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ये जो नए नए इंडेक्स आ रहे हैं, ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये सबसे आपको थॉरो होना पड़ेगा। अब ये मार्च और अप्रैल के आपके जो करंट अफेयर्स हैं, दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ, यही सब टॉपिक थे। अब मई 2017 पे आए अगर हम, मई और जून के ये ओवरलैपिंग है बेसिकली, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, देन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जियो टैगिंग करने की बात करी गई है, जो भी असेट्स बनाए जाएंगे इरिगेशन के लिए, क्योंकि उसमें जो है घपला घोटाला हो जाता है, मतलब इरिगेशन चैनल बना दिया गया है लेकिन पानी नहीं बहता वहां पे, क्योंकि जो पैसे हैं गांव वगैरह के एरिया में वो कहीं ना कहीं करप्शन के चलते नहीं पहुंच पाते, इसीलिए जियो टैगिंग करी जाएगी, जो भी एसेट्स बनाए जाएंगे उनकी ड्यूरेबिलिटी देखने के लिए। तो इसी के चलते जो है आपको बेसिकली जो जियो टैगिंग है मनरेगा को इंप्रूव करने के लिए, ये सब के लिए जियो टैगिंग की बात कर रही है सरकार। इसमें आउटकम बजट और आउटपुट बजटिंग में डिफरेंस क्या होता है, ये सब मैंने डीएनए में भी कवर करे थे। इसके साथ साथ और जो भी बजट है, आउटकम बजट है, आउटपुट बजट है, परफॉर्मेंस बजट है, ठीक है। यस, आई विल बी प्रियंका बत्रा, आई विल बी कवरिंग दीज टॉपिक्स इन द इंडियन इकोनॉमी पेड कोर्स दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन जो अनअकैडमी पे, विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th of January, राइट। एडमिशंस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। बाद में आप लोग मतलब काफी ज्यादा फिर मेरे लिए भी ट्रबल क्रिएट होती है कि सर आप करवा दो एनरोल, क्योंकि अब जब सीटें खत्म हो जाती है तब सबको याद आता है, राइट। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद दूसरा टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं बट आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन देम। देन आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है, ये फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं कवर करूंगा, उसमें ये आपको पता होना चाहिए जहां तक कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन है। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स ये बेसिकली जो आपका कोई एसेट किसी ने इन्वेस्ट करा है, कोई एयरप्लेन खरीदा है, तो उस
प्लेन पे कितनी रिटर्न आ रही है। ये तो हो गया किंगफिशर का एग्जांपल। बैंक का एग्जांपल अगर हम करें, बैंक ने किसी को 8 करोड़ रुपए लोन, 9 करोड़ रुपए लोन दिया है, उस पे क्या रिटर्न आ रही है, ब्रिटेन से आदमी रिटर्न नहीं हो रहे, तो ये रिटर्न हो गई, राइट। उस पे रिटर्न क्या आ रही है, मतलब समझ गए हो जो लोग डीएनए डेली समझते हो, सुनते हो। क्वायर उद्यमी योजना, ये क्वायर विकास योजना, 2 योजनाएं हैं क्वायर बोर्ड की। क्वायर बोर्ड किस में आता है, एमएसएमई। ये मैं क्वायर बोर्ड जान के बोल रहा हूँ, काफी लोग कनेक्ट करते हैं वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है ये उसके अंदर आता है, ठीक है। और इसके अंदर क्वायर विकास योजना का कंपोनेंट है महिला क्वायर योजना। ऐसे क्वायर उद्यमी योजना का मत कर देना, महिला क्वायर योजना जो है क्वायर विकास योजना का कंपोनेंट है। ये सब स्कीम्स जो है आपको इससे थोड़ा होना पड़ेगा फॉर प्रीलिम्स। नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज 2017, तो जो मैंने बताया कि मार्च का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, फिशरीज से रिलेटेड, इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज मई 2017 में लाई गई। तो पहले स्टेटस पढ़ोगे, ब्लू रेवोल्यूशन का स्टेटस क्या है इंडिया में, उसके बाद ये आप जो ये पढ़ोगे नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज। शिखा, आई रेड योर क्वेश्चन, जो आपका सेंसेक्स वाला क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू कवर इट ऑन यूट्यूब समवेयर। प्रदीप, आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू अटेंड टू योर क्वेरीज। तो यहाँ से आपको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। देन मसाला बॉन्ड्स, राइट। मसाला बॉन्ड्स क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मसाला बॉन्ड्स किसने, एनएचएआई ने लॉन्च करी थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। मसाला बॉन्ड्स और ये सब टॉपिक्स भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इकोनॉमी वाले कोर्स में, तो 100% ये हो जाएंगे। डीएनए में किसी दिन हम इसको भी अच्छे से मसाला वसाला डाल के इसे कवर करेंगे। डब्ल्यूपीआई और आईआईपी बेस ईयर चेंज, होलसेल प्राइस इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर को चेंज किया गया था। तो उस टाइम हिंदू के एडिटोरियल राइटर्स हैं, उन्होंने काफी ज्यादा इसका एनालिसिस किया था, इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया था कि जानबूझ के इसे चेंज किया गया है, फिगर्स को फर्ज करा जा रहा है। तो ये सब चीजों पे आपको भी ध्यान देना होगा। देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स, ये किसने सेटअप करे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आप बताओगे इसमें, ठीक है। एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यहाँ बता दे रहा हूँ। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर, ये दोबारा से आपका जो स्टार्टअप इंडिया है उसके साथ में आप इसे सिनर्जिस्टिकली पढ़ना पड़ेगा आपको। देन शारदा प्रसाद कमेटी, सेक्टर स्किल काउंसिल इन्होंने रिकमेंड करी थी, शारदा प्रसाद कमेटी। एसपीसी, सेक्टर स्किल काउंसिल, एसएससी, ऐसे याद रख लीजिए। इसके साथ साथ नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2015 का टॉपिक है गाइस, माइंड यू, ओके। लेकिन क्योंकि ये शारदा प्रसाद कमेटी, इनकी रिकमेंडेशंस अभी आई हैं 2017 में, तो इसीलिए नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ये आपकी पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके ब्रॉड टारगेट्स आपको सिर्फ पढ़ने हैं, ये नहीं कि पूरा उसकी निटिग्रिटी पढ़ने बैठ जाओ, राइट। एफआरबीएम का आलिया शर्मा, आई हैव कवर्ड इट ऑन अनअकैडमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस पे आप जा सकते हो। लिंक फेसबुक पे रिसेंटली 1-2 दिन पहले इस पे शेयर किया गया था, राइट, एक इन लास्ट 1 वीक इटसेल्फ। नाउ भारतीय निर्देशक द्रव्य बीएनडी 4201, ये है क्या, भारतीय निर्देशक द्रव्य, मैंने निर्देश दे दिए, बाकी आप पढ़ोगे। भारतीय, इसे गूगल सर्च कर लेना अभी, 4201, ये स्कीम गोल्ड सेक्टर से रिलेटेड है। उसके बाद में पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर, मेक इन इंडिया का ये कंपोनेंट है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर, सरकार ने ये कहा था जो भी सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी परचेजिंग करते हैं, तो वो सारे इसमें कवर किए, मतलब इसमें सरकार ने ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया गुड्स को आप परचेज करो, राइट। तो ये था, इसका ब्रॉडली मैंने बता दिया। इसके ऊपर एक पोर्टल भी बनाया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी से जो टेंडर सरकार फ्लोट करती है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, ये नहीं कि मतलब उसमें घपला घोटाला करप्शन हो सके। शक्ति पॉलिसी जो है कोल सेक्टर से रिलेटेड है। और सेवा ऐप है, सेवा ऐप डेवलप करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ सीनियर सिटीजन, ऐसा कुछ नहीं है। सेवा ऐप कोल इंडिया लिमिटेड ने डेवलप किया, राइट। तो सेवा से कहीं सेवा भाव में मत चले जाना, यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की ये ऐप है, ये आपको याद रखनी होगी। और इसके साथ में मे के आपके खत्म हो गए। अब मे के हम और करंट अफेयर्स की बात करें, फिस्कल कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट्स, ये मेन स्टा एनालिसिस है। पहली बार ऐसा हुआ है 11-12 सालों में, 17-18 सालों में नहीं, 11-12 सालों में, कि फिस्कल डेफिसिट जो सारी कंबाइंड स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं उनका 3% से बढ़ गया है, यानी कि सभी के सभी राज्य सरकारों ने 3% से ज्यादा खर्चा करा है, ठीक है। उस केस में जो हमारे फाइनेंस कमीशन रहते हैं वो बेसिकली ये कहते हैं कि राज्य सरकारें 3% से ज्यादा खर्चा ना करें, अपने जो भी राज्य सरकारों का जो जीडीपी होता है उसके 3% से दे शुड नॉट एक्सीड, राइट। So, but the state governments or the fiscal deficit of all the 29 states of India has for the first time in 11 years exceeded the 3% threshold recommended by successive finance commissions.
सो इन दैट लाइट आपको ये इसका एनालिसिस करना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स की जो वित्तीय हालत है, दी फिस्कल पोजीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इज डिटेरियोरेटिंग ऑफ लेट इन इंडिया। व्हाई? पावर सेक्टर डिस्कॉम्स, फार्म लोन वेवर्स, ये सब 8-10 जो इसके पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स फॉर्म में आपको थोड़ा इस पे गैदर करना होगा, राइट। टाइमिंग के लिए मौसम मतलब आपका नाम ही मौसम है, सॉरी ऑन अ लाइटर नोट, तो टाइमिंग सुबह का करवाने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। आई एम गेटिंग योर लॉट मेनी इनपुट्स की ये टाइमिंग चेंज किया जाए, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, ठीक है। तो मौसम के चलते समय का थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा। देन कमिंग टू अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी, अर्बन सेक्टर में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। अर्बन हाउसिंग पॉलिसी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसा कि मैंने पिछले दिनों डीएनए में भी एनालिसिस किया था कि अर्बन सेक्टर में शॉर्टेज जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अलग हाउसेस बनाए जा रहे हैं, लोअर इनकम ग्रुप के लिए एलआईजी हाउसेस अलग बनाए जा रहे हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए हाउसेस अलग बनाए जा रहे हैं और हायर इनकम ग्रुप के लिए अलग। तो जितने भी हाउसेस बनाए जाएंगे 25% ईच कैटेगरी के लिए रिजर्व करना पड़ेगा उसमें। जहां तक चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड या जो भी गवर्नमेंट हाउसिंग बोर्ड्स हैं, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या आपके टाउन की जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी है, वो सब चीजें इसमें आपको कवर करनी पड़ेंगी। देन इसके साथ साथ पी नोट्स और ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये सेबी ने नए नॉर्म्स बनाए थे इस पे मई 2017 में, राइट। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा इस पे, इनकी बेहतर मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए वही ये सब इकोनॉमिक कोर्स में मैं कवर करूंगा, या किसी दिन डीएनए में आएगा तो डीएनए में। इकोनॉमी का कोर्स जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता, ये एक पेड कोर्स है plus.unacademy.com पे, राइट। तो ये आप कर सकते हो इसे। डिबेट जून के टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है शुड एग्रीकल्चर इनकम बी टैक्स। एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10A इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एग्जेप्ट है, क्या इसे टैक्स करा जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं करोड़पति हैं और बाकी बहुत सारे फार्मर्स हैं वो रूरल लेबर टेलर्स हैं, राइट। मतलब कि वो मतलब किसी और के खेत में काम कर रहे हैं। तो ये चीज है। ओके, आई एम रीडिंग वन ऑफ द कमेंट्स, ठीक है। शिखा, योर पॉइंट इज टेकन, आई विल अबाइड बाय योर सजेशन और योर डायरेक्टिव ओवर हियर। देन कमिंग टू दिस थिंग, जो आपके ये जितने भी रूरल लेबरर्स हैं, किसी और के फार्म में काम कर रहे हैं, उनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी हमारा जीडीपी का 15-16% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, राइट। लेकिन उसका कुछ भी हिस्सा सरकार को नहीं मिलता, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता। उस पे टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये एक आइडिया है जो जून में फ्लोट किया गया था। इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक अग्रीमेंट फॉर शिखा एंड फॉर अदर्स, ये मैंने डीएनए में भी कवर करा था, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होने का। यहाँ पे क्या था कि निसान और जापान के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, निसान जो जापान की कंपनी है और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में जो दिसंबर के मंथ में जो डिस्प्यूट हुआ था, ये उस केस के बारे में बेसिकली, ठीक है। इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या होता है ये आपको बेसिकली पता होगा। देन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स क्या हैं, जो हम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ में, जर्मनी, फ्रांस वगैरह के साथ में अपना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एक वैसे जो ये हम डिबेट उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है पिछले 6-7-8 सालों से, वो सब चीजें जो है हमें यहाँ पे मतलब स्टडी करनी होगी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, मेंस में आप कुछ भी रट्टा मार के लिख सकते हो जहां तक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड कि आपको याद रहे। देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रखा गया है। मतलब जो पहले अगर कोई मैं किसी से सामान खरीदता हूं, जैसे आप कुछ परचेज करते हो या रेस्टोरेंट में आप यू गो एंड डाइन आउट, वहां पे क्या होता है, रेस्टोरेंट वाले को टैक्स पे करना होता है, ठीक है। उसमें लिखा होता है वैट इंक्लूडेड, सर्विस टैक्स इंक्लूडेड, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या है, लायबिलिटी जो टैक्स पे करने की है वो किसकी है, जो परचेज कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं कुछ परचेज कर रहा हूं तो मैं टैक्स पे करूंगा, ये यहाँ पे रिवर्स हो गया। मतलब कि वो जो लॉजिकल फंडा है, जब आप कुछ प्लास्टिक वेयर्स या ग्लास या गर्ल्स के केस में जो सूट या कुछ भी खरीदते हो, ठीक है, उसके केस में टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता, आपसे टैक्स पहले वसूल कर लेता है जो सेलर है और वो आपके बिहाफ पे पे करता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये चीज है। नेशनल बायोफार्मा, ये शिखा प्लीज डोंट माइंड, द पॉइंट इज मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने बैठ जाता हूँ। अगर आप और टीचर्स एजुकेटर्स जो भी ऑनलाइन एरिना में है, आई कैन वाउच फॉर दिस थिंग। वो पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ कि ठीक है टाइम भी कुछ चीज होती है, लेकिन अदरवाइज आप देखो 15 मिनट का सेशन, 20 मिनट का सेशन होता है, खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मेरे साथ वो नहीं रहता। डीएनए में 4 वीडियो का ये जो चलन है, 1 घंटे का सिर्फ डीएनए, ये ऑल थैंक्स टू, ऑल क्रेडिट गोज टू मी, अ बिट ऑफ अ सेल्फ अप्लॉज। जतिन वर्मा ने ये शुरू किया था कि 1 घंटे 1.25 घंटे का भी डीएनए बनता है, राइट।
तो इसके लिए रेस्ट एश्योर्ड जितना भी टीएन में हो सकता है मैं उसे पूरा का पूरा वहां पे फॉलो करता हूँ। अगर मैं पेड कोर्सेज नहीं करूंगा, जो लोग आप क्रिटिसाइज करते रहते हो, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमी का कोर्स या पॉलिटी का कोर्स कोई और नहीं करेगा, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छे वे से कर रहा हूँ, तो दैट इज व्हाई आई एम इनटू द पेड एरिना आल्सो, राइट। और ये चीज है, वहां पे 15 मिनट्स का अनअकैडमी पे वीडियो रहता है, तो प्लेटफॉर्म है, तो आई हैव टू प्रेजेंट माय व्यूज। आई लाइक टीचिंग, आई लव टीचिंग। तो एक वो माध्यम है सिर्फ, ठीक है, उसके बदले में रिटर्न आ रही है, बट रिटर्न, फाइनेंशियल रिटर्न हैज नेवर बीन माय प्राइमरी मोटिव। रेस्ट एश्योर्ड ऑल ऑफ यू, जितने भी ये 200 लोग देख रहे हो, राइट। तो नेशनल बायोफार्मा मिशन, नेशनल बायोफार्मा मिशन और ये जेनेरिक ड्रग्स क्या है, ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसका अभी के अभी रात को 11 बजे से पहले। देन सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, साथ, ये किसके साथ साथ है, कौन दोनों साथ है यहाँ पे, नीति आयोग और स्टेट गवर्नमेंट्स। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ये दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। जून का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जून 2017। देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया, नेशनल बायोफार्मा मिशन हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये पार्ट है, राइट। एनालिसिस इसका आपको करना होगा क्योंकि सीएजी ने कुछ कुछ इस पे एडवाइस कमेंट्री करी थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने। देन फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017, ये भी इंपॉर्टेंट है, एफआरडीआई बिल, राइट। और ओईसीडी ने, जो ओईसीडी ग्रुपिंग है, ठीक है, उन्होंने बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग पे कुछ कुछ नए नॉर्म्स लेके आए थे वो सब चीजें, अब थैंक यू आ गया शिखा, वेरी गुड वेरी गुड, इतनी जल्दी गुस्सा ठंडा हो गया। ओईसीडी कन्वेंशन ऑन बीईपीएस, ये आपको बेसिकली ये आपको पढ़ना होगा, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, इनकी जून की थी, जून 2017 का करंट अफेयर्स है। अब जून के करंट अफेयर्स में आप इसे खोज सकते हो, पक्का ये मिल जाएगा, इंडेक्स अवेलेबल करा दिया गया था इसी फेसबुक प्रोफाइल पे। और जुलाई के करंट अफेयर्स की बात करें, जीएसटी अमेंडमेंट, जीएसटी अमेंडमेंट आया था जुलाई 2017 से इसे इंप्लीमेंट करा गया था। तो ये चीजें, जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जीएसटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जीएसटी नेटवर्क जो है वो आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वो ऑर्डिनरी बॉडी है, तो उसमें कुछ वो नहीं है कि आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आपको निटी-ग्रिटी जीएसटी की ये आपको पढ़नी होगी, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, राइट। देन नेशनल एनर्जी पॉलिसी क्या है, इसके ब्रॉड कॉन्टूर्स क्या है। नेशनल एनर्जी पॉलिसी में स्टेट एनर्जी, ये जो ट्रांसमिशन बोर्ड्स हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और ये सब, इनका क्या रोल है ये आपको पढ़ना होगा। हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, हेल्प, तो ये साथ और हेल्प, ये सब चीजों से थोड़ा रूबरू हो लेना। हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये नई जो पॉलिसी आई थी जुलाई 2017 में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा क्योंकि 2015 में गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम लाया गया था, उसको रीहैश्ड फॉर्म में, क्योंकि जब वो स्कीम फ्लॉप हो गई, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाया गया। अब इसके एनालिसिस का टाइम आता है कि क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज गोइंग टू कवर द ब्रिज दैट वाज एनविसेज्ड बाय द गवर्नमेंट, की ये जो गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमारा एक वैसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, क्या उसे हमारी सरकार कब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, राइट। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, पीपीपी क्रिटिकल एनालिसिस। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम देखते हैं, ये कुछ स्वैग का जो कमेंट है, आई कैन सी दैट, राइट। इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम देखते हैं कि टाइम एंड कॉस्ट ओवररन की वजह से 83,000 करोड़ रुपीस का एक वैसे एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। क्या हम इसे ब्रिज नहीं कर सकते? क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी यहाँ पे कैन बी फॉल्ट दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी फॉर दिस थिंग, राइट। पीपीपी पॉलिसी में कुछ फॉल्ट होगा तभी तो टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होता है। हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, मॉनसून को ब्लेम कर दिया जाता है। सीएजी अगर रिपोर्ट में ये साइट करते हैं कि इतना ज्यादा खर्चा हुआ है, तो सरकार कहती है मॉनसून आ गया था इसीलिए खर्चा हुआ है। तो भाई जब प्लानिंग हो रही थी तो कुछ ऐसे वैसे प्लानिंग होनी चाहिए थी कि खर्चा ज्यादा नहीं होता, मॉनसून को अकाउंट पहले ही कर लिया जाता। इसी के चलते सरकार काफी सकारात्मक, काफी पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है। द स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट आर, वन ऑफ देम इज rescheduling the date of budget, preponing the date of budget from February 28 to February 1, ठीक है। अब एक और इसमें ये चल रहा है कि मॉनसून के फैक्टर को, to keep aside the monsoon factor, to reduce the impact of the monsoon on the projects, इसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या हम फाइनेंशियल ईयर Jan 1 से लेकर 31 दिसंबर तक कर दें। दिस इज द आइडिया दैट द गवर्नमेंट इज टॉइंग विद, ठीक है। उससे क्या होगा कि मॉनसून का इंपैक्ट जो है मिड ऑफ द ईयर आएगा। अभी मॉनसून का इंपैक्ट क्या होता है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, साथ के साथ में मॉनसून आ जाता है, उसके चलते रोड सेक्टर जो भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, दैट्स
गेट्स डिलेड। जैसे ही पैसा आता है काम शुरू होना चाहिए, लेकिन पैसा आते ही काम शुरू होने की बजाय काम ठप हो जाता है क्योंकि मॉनसून आ जाता है। इसी के चलते जनवरी में क्या बजट को लाना चाहिए या नहीं, ये सब चीजें थीमेटिक वे में, एक कॉन्टिन्यूम बेस्ड वे में हम स्टडी करेंगे इकोनॉमी के पेड कोर्स में, राइट। देन कमिंग टू दिस डीबीटी एनालिसिस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एनालिसिस, इकोनॉमिक सर्वे 2017 का ये टॉपिक है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वली रेलेवेंट फॉर 2018 और 19, राइट। देन इसमें सेविंग्स कितनी ज्यादा हुई है, 54,000 करोड़ की सेविंग्स हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है इन सो फार एज एलपीजी थिंग इज कंसर्न। देन अब आते हैं सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम। बी थॉरो विद इट्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड पार्ट्स, जो भी आपको नॉलेज इसके लिए चाहिए। देन वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, दो ये हो गई। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स वर ड्राउट प्रोन, सो यू हैव टू बी थॉरो विद दीज, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर, ये तीन जो स्कीम्स हैं, इसका एज फार एज आई रिमेंबर जुलाई 2017 में हमने इसका एनालिसिस किया था, जुलाई के डीएनए में। अदरवाइज इकोनॉमी कोर्स में इसे दोबारा से एक स्ट्रीमलाइन वे में एनालिसिस किया जाएगा, एंड दैट कोर्स इज गोइंग टू बी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। 50-60, 60-40 ये रेशियो वेरी करेगा, ठीक है। व्हाटएवर आई विल बी सेइंग इन इंग्लिश आई विल बी रिपीटिंग दैट इन हिंदी आल्सो। जो भी हिंदी में बोला जाएगा वो इंग्लिश में भी रिपीट करा जाएगा उस कोर्स में। देन ये आगे आपके जुलाई के बातें हैं, इस पे अगस्त के इश्यूज पे। तो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ई रकम दूसरा प्रोजेक्ट है। ई रकम पोर्टल जो है फॉर सेलिंग एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स। एज फार एज आई रिमेंबर गाइस, एक ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है बनाया गया था फरवरी 2017 के साथ जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, राइट। तो जो ई रकम पोर्टल है फॉर सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये भी फॉर सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही था। जो ये बेसिकली जो आपका एपीएमसी एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमिटीज एक्ट, जो स्टेट लेवल पे होते हैं, ये सब चीजें हैं। अनिकेत वर्मा, आंसर्स कैसे असेस करें? मैं गारंटी तो नहीं लूंगा, ये आप क्योंकि सेकंड टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आई थॉट इट राइट टू आंसर इट हियर। ये आप टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनल मैसेजेस में भेज सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आई विल ट्राई टू इवैल्यूएट सम ऑफ द आंसर्स। और यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी एक ग्रुप बना हुआ है, आई विल ट्राई टू बी रेगुलर विद दैट आल्सो। और दूसरी चीज है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, क्या है ये अगस्त का टॉपिक है। फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर, ये जो न्यू इंस्टीट्यूशन सेटअप करी गई थी, इनको क्यों सेटअप करा गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ setting them up? Okay, these were proposed in the budget 2017. Whether they have been set up or not, if yes, if they have been set up, what is their duty? What is their mandate? This thing is there. Then medium term expenditure framework statement. तो ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा 2017 का, जो है 2018 प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है। और भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये बेसिकली बिजनेस पेज 13 पे हमने कुछ दिनों पहले से डील किया था, आई थिंक नवंबर में से डील किया था। तो नवंबर का जो डीएनए का इंडेक्स आपको प्रोवाइड कराया गया, उस पे आप देख सकते हो। देन न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी 2017, न्यू अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2007 है, ये भी आपको ये पढ़नी पड़ेगी, ओल्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। ये सब चीजें जो है बेसिकली गूगल आउट कर सकते हो, इनको सर्च कर सकते हो। जो लोग इकोनॉमी कोर्स में नहीं है, इकोनॉमी कोर्स में इन्हें भी डील, आई विल ट्राई टू डील विद देम। उसके साथ में आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और डीएनए में भी जब जब कभी कोई न्यूज आएगी, न्यूज नहीं भी आएगी, अगर कोई मेंशन भी होगा, आई विल ट्राई टू एक्सट्रापोलेट एंड कवर दैट अप, ठीक है। ये जो चीजें मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं। और फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2017, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, जो हमने पहले भी एक फार्मास्यूटिकल पॉलिसी का जिक्र किया। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एफडीआई इन इंडिया, डू यू थिंक दैट इंडिया इज, ये जो साइन करे जा रहे हैं इंडिया ने जो एफटीएज और एशियान के साथ में 25 इयर्स हो गए, ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देन के राजेश्वर राव कमेटी, न्यू नेशनल मिनरल पॉलिसी, K. Rajeshwar Rao, new national mineral policy. As far as I remember, I have taken the name of 4 committees in this 45 minutes old session. Okay, तो वो सब आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, इन कमिटीज को एटलीस्ट। 5th कमेटी हो जाएगी आपकी नचिकेत मोड, which is from year 2014. Now, then ये चीज हो गई के राजेश्वर राव कमेटी, न्यू नेशनल मेट्रो पॉलिसी। और अब लास्ट में ये टिप देना चाहूंगा, अगस्त तक के करंट अफेयर्स मैंने अभी डील करे हैं। नेक्स्ट लाइव सेशन विल बी कंडक्टेड दिस वीक इटसेल्फ। उसमें हम देखेंगे सितंबर टू दिसंबर ऑनवर्ड्स के करंट अफेयर्स, उस पे क्योंकि डिस्कशन करना था, सिर्फ टॉपिक्स मुझे रीड आउट नहीं करने थे, इसीलिए इट टुक मी अ लिटिल लॉन्गर। तो ये चीज है, इसको हम स्टडी बेसिकली बाकी के टॉपिक सितंबर के हम उसमें स्टडी करेंगे। लास्ट में कुछ टिप्स ये देना चाहूंगा कि जो भी मटेरियल आपके पास में है,
उसको आप मैक्सिमम यूज करो, ठीक है, बार बार उसे रिवाइज करो. इट्स बेटर टू रीड द सेम मटेरियल ट्वाइस ओवर, थ्राइस ओवर, 4 times ओवर, rather than starting with some picking up some new Xerox material और कोई दोस्त ने बुक बता दी या किसी फेसबुक ग्रुप में पढ़ लिया. डोंट डू दैट मिस्टेक, ठीक है. बार बार एक बुक पढ़ोगे कुछ याद नहीं होगा. इससे बेटर ये है कि एक ही बार बार नई नई बुक्स पढ़ोगे तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं. एक ही बुक को बार बार पढ़ो. दैट इज you will be that is the approach that will yield maximum benefit for you. अब आते हैं इंटीग्रेटेड वे में. जो आपको एक करंट अफेयर्स है, बजट है, हम क्या करते हैं इसे फ्रेगमेंटेड तरीके से पढ़ते हैं कि ठीक है अभी ये पढ़ लिया, उसके बाद में कुछ और करंट अफेयर्स हमने उठा लिए. ऐसा मत करो. जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, रमेश सिंह या कोई भी, उस बुक में वहीं के वहीं जो आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो भी है उसे जेरोक्स करा के करंट अफेयर्स की मैगजीन में से उसे एज अ लीफलेट अपनी बुक में पेज रिस्पेक्टिव पेज नंबर डाल के उस पेज पे, ताकि वो बाद में मिसप्लेस नहीं हो जाए. ये चीजें आप कर सकते हो. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, आंचल वर्मा, ये पुराना टॉपिक है बहुत, इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है. पढ़ने को पढ़ सकते हो. एक मतलब मेंटल न्यूट्रिशन हो जाएगा आपके लिए. यूपीएससी के लिए मतलब इतना ये कुछ उसके लिए खास नहीं रहेगा, राइट, अभी के लिए. बाकी आई एम टेकिंग द रिस्क, यू कैन रीड इट. बाद में मुझे नहीं बोलना कि सर मैल नरिश्ड हो गए हम, ये कोई टॉपिक करके जाते हैं, आपने मना किया था. नो इनहिबिशंस, राइट. ये चीज है. इसके बाद इंटीग्रेटेड वे में करंट अफेयर्स, फंडामेंटल बेसिक इकोनॉमिक्स. पहले अपने बेसिक्स इकोनॉमी के आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो. जिनके स्ट्रॉन्ग नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि कोर्स भले ही महंगा लग रहा हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, लेकिन मेरी तरफ से जो भी आपको इनपुट्स जितना भी मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ, जो भी कार्टून डायग्राम चुरा चुरू के इधर से, वो सब करने की कोशिश करी जाएगी ऑन अ लाइटर नोट. So this was all in today's analysis, guys. I hope you enjoyed it and it was beneficial for you. Wednesday या फिर Friday को next session रखते हैं at the same time 8 PM, ठीक है. बाकी का अगर in case there is some change in the schedule, I'll update you यहाँ पे Facebook के इस channel पे, right? So this was all in today's analysis and today's this discussion, guys. I hope you enjoyed it. और ये जो ग्लिच था इकोनॉमी कोर्स के लिए, जो सीट्स फिलअप हो गई थी आफ्टरनून में, वो अब रिजॉल्व कर दिया गया, तो उसे आप मतलब अभी अप्लाई कर सकते हो. आई थिंक 50 और सीट्स क्रिएट कर दी गई थी उसके लिए, 50-60 सीट्स और क्रिएट कर दी गई थी. तो टाइमिंग का, इकोनॉमी के कोर्स का जो टाइमिंग का इशू है, उसे भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी. थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय.